فقہ کے درس کی طرف، جس میں زکوٰۃ کی تقسیم سے متعلق گفتگو باقی تھی کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 60 جو کہ مشہور آیت ہے، جس کے یہ ایک ہی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حصے دار کون ہیں، کون لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان تمام کی تفصیل اسی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ زکوٰۃ لینے کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں، ان سب کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہوا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فریضۃ من اللہ۔ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، صدقات سے مراد یہاں پر زکوٰۃ فقیروں مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور اسی طرح گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد کرنے کے لیے۔ اب یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، پورے کل ملا کے 8 ہے۔ اب ایک ایک کی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے دونوں کو ایک ساتھ لے لیا گیا، فقیر اور مسکین۔ یہ دونوں لفظ تقریباً ہم معنی ہے اور ہر ایک کا اطلاق ایک دوسرے پر ہو سکتا ہے۔ فقیر کے لفظی معنی حاجت مند، فقر ضرورت مند، حاجت مند، اور مسکین کے لفظی معنی عاجز اور بیچارے کے ہیں۔ مسکین کی تشریح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے، مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو اور نہ پہچانا جاتا ہو کہ اس کی مدد کی جا سکے، اور نہ وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب دیکھیں آپ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر وہ جو مانگتا ہے، فقیر وہ جو مانگتا ہے، مسکین وہ جو مانگتا نہیں ہے، جو مانگتا نہیں ہے، بتاتا نہیں اپنے آپ کی کہ اس کو ضرورت ہے۔ ہاں پتا چل جاتا ہے۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کسی آدمی کی تنخواہ اتنی ہے، بھائی اتنی تنخواہ میں اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کے گھر کا کرایہ نکلنا ہے، اس کے بچوں کی پڑھائی ہے، اس کے گھر میں فلاں بیمار ہے، ہاں اس کے یہ قرض دار ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے حالات سے واقفیت ہو جا سکتی، لیکن وہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے کہ میں مقروض ہوں، میں قرض دار ہوں، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، مجھے کوئی کچھ دے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اچھے شان سے رہتا ہے، وہ ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من التعفف لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، اور تمہیں لگے گا کہ وہ مالدار ہیں، لوگ انہیں مالدار سمجھیں گے ان کے پاک دامنی کی وجہ سے، لوگ انہیں کیا ہے اغنیا، لوگ انہیں مالدار سمجھیں گے۔ ارے اس کو کیا کم ہے بھائی، ماشاءاللہ دیکھو اس کے کپڑے دیکھو، اس کا اسٹائل دیکھو، اس کے رہنے کا دیکھو، حالانکہ ان دکھا رہا ہے، حقیقت میں ویسا نہیں ہے، حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خودداری کی زندگی گزارتے ہیں، خوددار رہتے ہیں، وہ مجبور گھر میں دال کھاتے ہیں، چٹنی کھاتے ہیں، مرچی کھاتے ہیں، لیکن کبھی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ باہر بڑے ٹپ ٹاپ نظر آتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا آدمی ہے، تو دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے۔ کبھی اس کی ظاہری شکل صورت سے، اس کی حالت سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کسی بھی کیریکٹر سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، محتاج۔ ہاں مسکین ہے، اس کی جاب بھی چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ جاب چلی گئی ہے، اس کا کاروبار رہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، جاب چل رہی ہے، لیکن وہ اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ اس کی ضروریات کہا گیا، ضروریات کہا گیا، ایکسٹرا آرڈنری خرچ نہیں۔ ایکسٹرا آرڈنری خرچ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، کتنا بھی بڑا مالدار ہو اس کے پاس اس کے ایکسٹرا آرڈنری خرچ رہتے ہیں، لیکن بنیادی ضرورت جو اس کے بیسک فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں، اس کے وہ رائٹس، اس کے جن حقوق اس کے وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس کی غذا، اس کی دوا، اس کا علاج، اس کی پڑھائی، اس کی رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کے بچوں کی ساری کفالت وغیرہ، یہ ساری چیزیں مکمل نہ ہو پاتی ہیں۔ خرچ ہو رہا ہے، کما رہا ہے، اتنا نہیں کما رہا ہے جتنا اس کا، جس سے اس کا گزارا ہو سکے، تھوڑا بہت ہو جا رہا ہے، تو اس کو مسکین کہا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین،
अल्लाह मुझे जब उठाना क़यामत के दिन तो मिस्कीन लोगों के ग्रोह से उठाना, मिस्कीनों के ग्रोह से उठाना। अच्छा, उसके बाद गनी की वो हद कौन सी है जिसके बाद कोई शख्स ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं रहता, इसके बारे में कई हदीस। अच्छा, एक तो ये कि भाई फकीर जो मांगता है, पता है वो मांगने वाला है, उसको तो देना ही। दूसरा मिस्कीन है, मिस्कीन में रिश्तेदार खास तौर पर वो हकदार हैं, क्योंकि वो रिश्तेदारी की वजह से शर्माते हैं, झिझकते हैं, नहीं मांगते हैं। रिश्तेदारों को पता रहता है लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करते हैं, हालांकि रिश्तेदारों का ख्याल करके उन्हें देने पर उन्हें डबल अजर मिलेगा। एक तो सदक़े का अजर भी मिलेगा, दूसरा रिश्तेदारी का हक अदा करने पर भी उन्हें अजर मिलेगा। लेकिन अब एक मसला ये है कि किस आदमी को मालदार समझा जा सके, किस आदमी को ज़कात का मुस्तहिक ना समझा जा सके। अब ये हर दौर के एतबार से अलग अलग हो सकता है, हर दौर के एतबार से अलग अलग हो सकता है। पहले हम हदीस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद उसकी तफसील में जाते हैं। पहली हदीस हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सवाल किया हालांकि उसके पास एक उकिया यानी 10.5 तोले चांदी या उसकी कीमत हो, तो उसने इल्हाफ किया यानी पीछे पड़कर सवाल किया, जिसकी कुरान मजीद ने मजम्मत की गई है। मतलब क्या हुआ, 10.5 तोले चांदी, 10 तोले या 10.5 तोले चांदी की कीमत अगर किसी के पास है तो उसको मांगना नहीं चाहिए, उसको मांगना नहीं चाहिए। अगर वो मांग रहा है तो वो इल्हाफ का काम, चिमट कर मांग रहा है, जिसकी कुरान मजीद में मजम्मत की गई। दूसरी हदीस हजरत सहल बिन हंबला से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाल करता है हालांकि उसके पास वो चीज हो जो उसे गनी बेहाजत बनाती हो, तो गोया वो जहन्नम के अंगारे समेटता है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चीज क्या है जो उसे गनी बनाती है? फरमाया, उसका दोपहर का खाना या शाम का खाना। दूसरी रिवायत में या के बजाय और का लफ्ज, दोपहर का और शाम का खाना, यानी 2 टाइम का खाना उसके पास मौजूद है। ये एक हदीस, हम पूरी हदीस में पढ़ेंगे, हालात का जायजा लेकर हम गुफ्तगू करेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाल करता है हालांकि उसके पास वो चीज हो जो उसे गनी बनाती हो, तो उसका मांगा हुआ सदका क़यामत के रोज उसके चेहरे पर नोच का निशान बनकर आएगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका गनी होना, बेहाजत होना क्या है? फरमाया, 50 दिरहम, 13.5 तोले चांदी या उनके बराबर सोना, 13.5 तोले चांदी या उसके बराबर सोना मौजूद हो। इस हदीस की सनद के लिहाज से बहुत से मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। इन हदीस की बिना पर मुख्तलिफ अइम्मा ने गनी की मुख्तलिफ हद मुकर्रर की है, जिसकी तफसील नीचे हाशिए में जिक्र की गई। इमाम सुफियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, हसन बिन सालेह और इसहाक बिन रावी का मसलक ये है, तीसरी हदीस के मुताबिक, कि जिस शख्स के पास 50 दिरहम, 13.5 तोले चांदी या उनके बराबर सोना या नकदी, नकदी से मुराद करेंसी, नोट, पैसे हो, वो उसका मालिक हो, तो उसे ज़कात नहीं दी जाएगी। चलो, अब इसको, ये उस जमाने की बात है, ये उस जमाने की बात है। आज की बात करते हैं। इमरान भाई, चांदी का रेट क्या है आज? 850 900 कुछ करीब है मौलाना, एग्जैक्टली नहीं 900 पता। पकड़ लो, चलो हाँ ठीक है, 900, 1000 रुपये पकड़ लेते, ठीक है, 1000 रुपये पकड़ लेते। 14 तोले, हाँ 14,000 रुपये, 14 तोले 14,000 रुपये। तो क्या 14,000 कमाने वाला आज के जमाने में मालदार कहा जा सकता है? मालदार कहा जा सकता है आज के जमाने में 14,000 कमाने वाला? महीने को नहीं मौलाना? कहा जा सकता। हाँ, महीने को नहीं कहा जा सकता है। उसका घर का किराया 10,000 है मिसाल के तौर पे, तो 4,000 बच रहे उसके पास, तो मालदार कहाँ हुआ? तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो अइम्मा के अक़वाल हैं या जो ये अहादीस हैं, उनको आज के हालात पर अगर आप फिट करेंगे चांदी के तोले की कीमत के एतबार से,
तो आज इस एतबार से देखा गया तो आज के दौर में हर मिडिल क्लास आदमी मालदार है, हर मिडिल क्लास आदमी मालदार है। बिल्कुल जो गुर्बत की लाइन से नीचे है वैसा ही आदमी गरीब हो सकता है, वरना देखा गया तो आज बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं लेकिन ज़कात के हकदार बनते हैं, उनकी तमाम जरूरियात पूरी नहीं हो पाती है। वो बच्चों की फीस का मामला हो, इलाज दवा का मामला हो, ग़िज़ा का मामला हो, महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर का जो ना राशन अगर लाने बैठे तो मिडिल क्लास अगर एक घर में मिसाल के तौर पे 10 लोग अगर रह रहे हैं या 5 लोग अगर रह रहे हैं, कम से कम 5 लोग भी अगर रहें तो कम से कम उसके महीने का खर्चा 3 से 4 हजार रुपये मिनिमम है उसके राशन का। वो उसके अलावा एक्स्ट्रा तरकारी, गोश्त, दूध वगैरह सब अलग है। खाली चावल, तेल, शक्कर, आटा, ये जो बुनियादी जो जरूरियात हैं वो अगर ले लेंगे तो उससे हटके जो डेली उसको दूध लाना है, डेली उसको तरकारी लाना है, डेली उसको गोश्त लाना है, हफ्ते में एक दिन उसको गोश्त लाना है, तो ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो हजारों में उसका जो ना हिसाब बन जाता है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो आज के जमाने में 14,000, हम तो हालांकि हम बढ़ के लगा रहे हैं, 900 रुपये रेट पकड़ के चले, 1,000 रुपये लगा दिए, 1,000 रुपये के एतबार से 14 तोले पकड़ लिए हम, 13 तोले, 13.5 तोले नहीं, 14 तोले चांदी के हिसाब से भी अगर पकड़ लेंगे तो 14,000 रुपये भी अगर किसी के पास है तो वो आज के जमाने में हम उसको गनी नहीं कह सकते। हालात के एतबार से उस आदमी को गनी नहीं कहा जा सकता। आप देखेंगे एक लेबर है, लेबर आदमी डेली के 600-800 रुपये कमा लेता है, अगर वो 600 रुपये भी कमा रहा है तो माहाना 24,000 रुपये कमा रहा है, 24,000 रुपये कमा के भी वो गनी नहीं है आज के जमाने में, वो लेबर ही है, उसकी कैटेगरी भी कम है और उसके अखराजात भी उससे पूरे तकमील नहीं हो पा रहे हैं, घर का किराया नहीं निकल पा रहा है, उसके बच्चों की फीस, एक एक स्कूल में एक एक बच्चे की फीस 3,000-5,000 रुपये फीस है, वो कहाँ से दे पाएगा। ऐसे बहुत सी चीजें। अब यहाँ बाद लोग ये कह सकते हैं कि मौलाना गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा ले सकता ना, झोपड़ी में भी रह जा सकता ना, तो फिर झोपड़ी में रहने वाला मालदार कहाँ हुआ, जिसकी बुनियादी उसके फंडामेंटल राइट्स उसके अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो वो गनी नहीं हो सकता है, वो मालदार नहीं हो सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और भी बहुत से अक़वाल हैं, नीचे 50 दिरहम की बात भी है, 40 दिरहम की बात भी है, और इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों के नजदीक गनी की उस हद का जिक्र नहीं है जिसके बाद किसी शख्स को ज़कात देना या उसका ज़कात कबूल करना जायज ना हो, बल्कि उसका मिक़दार जिक्र ना हो, जिसके बाद इंसान के लिए खुद सवाल करना जायज नहीं है। ये मुख्तलिफ तफरीक उलमा के दरमियान अपने अपने हिसाब से उन्होंने उस जमाने के हिसाब से की है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात यह है इस हदीस में, जो दूसरी हदीस गुजरी है हमारे सामने, कि मांगने वाले के चेहरे पर निशान बनकर आएगा, मांगने वाले के चेहरे पर निशान बनकर आएगा। आदमी जहां तक हो सके अपने आप को खुददार बनाकर रखे, कमाए, मेहनत करे, लोगों की ज़कात लेने, लोगों के सदक़ात लेने की कोशिश न करे, बल्कि आज तो बहुत से लोगों का ये धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है, मुख्तलिफ तरीके से लोग लोगों को लूट रहे हैं, कोई दीन के नाम पर लूट रहे हैं, कोई मस्जिदों के नाम पर लूट रहे हैं, कोई मदरसों के नाम पर लूट रहे हैं, कोई यतीम खाने के नाम पर लूट रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोगों के इमोशनल जज्बात से खेला जा रहा है, उनके रिलीजियस जो अकायद हैं, भाई सदक़े के नाम पर वो दे रहा है, सवाब के नाम पर दे रहा है, कोई हिंदू दे रहा है तो पुण्य कमाने के नाम पर दे रहा है, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोगों को ठगा जा रहा है। मुख्तलिफ लोग जो असल हकदार हैं उन हकदारों तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, असल जो हकदार हैं उन हकदारों तक वो माल नहीं पहुंच पा रहा है। कितने पड़ोसी जो ना भूखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला युमिन अल्लज़ी जारुहु क्या है वो जाए, इस तरह के अल्फाज आते हैं। वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो, पड़ोस में आदमी भूखा बैठा हुआ है। हम ऑनलाइन ट्रांसफर करने की, अभी हमारे दौरे शरिया की टीम के एक मेंबर हैं, अल्लाह जज़ाए खैर, उन्होंने मुझसे सवाल किया था, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, गालिबन जुमा के दिन की बात है या जुमेरात के दिन की बात है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि एक ऐसा ट्रस्ट लोगों ने कायम किया है जो लोगों का बैंक का इंटरेस्ट जो ना ले रहे हैं, किस नाम पर ले रहे हैं कि मस्जिद की प्रॉपर्टी टैक्स वो पे करेंगे, ये इंटरेस्ट बैंक के इंटरेस्ट से। सबसे पहली बात तो ये कि मसाजिद तो आमतौर पर बहुत से स्टेट में टैक्स लगता ही नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स आता नहीं। अगर प्रॉपर्टी टैक्स आ भी रहा है तो उसे हराम पैसे से कैसे बंधा जाएगा। अब मालूम है लोगों को कि कोई बनता नहीं, और उसके अंदर किसी मस्जिद का नाम मेंशन नहीं है, किसी इलाके का नाम नहीं है, बेहतरीन जो ना बैनर बना के उसको जो ना सर्कुलेट किया जा रहा है, एनआरआई के ग्रुपों में जो ना फैलाया जा रहा है कि एनआरआई लोगों के अकाउंट्स में ज्यादा पैसा होता है,
उनके अकाउंट्स में जो ना बैंक इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, तो उससे वहां से बैंक इंटरेस्ट हासिल कर लें। तो मुख्तलिफ तरीके से लोग इतने क्रिमिनल हो गए हैं, इतने क्रिमिनल हो गए हैं, कहाँ से किस तरीके से माल लूटना है, बस यही चल रहा है। तो ये तो खैर लोगों का हाल है, लेकिन जो खुददार लोग हैं, जो बड़े ही अपनी इज्जत को बचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी आज दुनिया में मौजूद हैं जो खुददारी से जीते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, कभी किसी के सामने अपनी जरूरियात पेश नहीं करते, घर में बच्चे भूखे रहते हैं, नए कपड़े ईद को नसीब नहीं होते हैं, घर के किराया उनका जो ना नहीं निकल पाता है, छोटे छोटे घरों में जो ना जिंदगी गुजार लेते हैं। ऐसे कई तरह के लोग हैं जिसकी जिंदगी बिलखुसूस अभी लॉकडाउन के बाद ऐसे हालात, कई अच्छे अच्छे लोगों के हालात खराब हो गए, कई हाई क्लास लोग मिडिल क्लास बन गए, कई मिडिल क्लास लोग लो क्लास बन गए, हर एक की कैटेगरी अलग अलग हुई। अल्लाह ताला ने मालदार को, किसी को मालदार बना दिया, किसी को मोहताज बना दिया, ये तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रिज़्क़ को कुशादा करता है, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ को तंग कर देता है, ये अल्लाह के हाथ में। लेकिन इस मामले में लोगों को ज़कात लेने से पहले अपनी खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए जहां तक हो सके। लेकिन इंसान बसा औकात मजबूर हो जाता है, बहुत मकरूज हो जाता है, बहुत हालात का वो सामना करके इस नौबत पर पहुंच जाता है कि अब वो सिवाय उसके कोई और चारा उसे नजर नहीं आता, और वो खुद नहीं मांगता है, लोग उसकी हालत देख कर दे रहे हैं, तो वो काबिल फख्र है, वो अच्छी बात है। लेकिन बसा औकात वो अपनी जो ना तफसीलात से किसी को वाकिफ करवा कर अगर लेना चाहे तो ले सकता है, अगर वाकईतन वो सच्चा है, अगर वाकईतन वो सच्चा है। और सही मानों में अगर देखा जाए तो चूंकि हमारे पास मुल्क में बैतुल माल का सिस्टम सही नहीं है, बैतुल माल का सिस्टम अगर इस्लामी हुकूमत होती, बैतुल माल होता, हर एक का डेटा उनके पास होता, कौन कितना मालदार है, कितना गरीब है, किसके पास कितना है, किसके पास कितना नहीं है, कौन कितना ज़कात देने वाला है, कौन ज़कात लेने वाला है, सारी तफासिल उनके पास होती है। और इस हिसाब से वो हर महीना किसको कितना देना है उस हिसाब से वहां से डिवाइड होता, वहां से तकसीम होता, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम होता। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाए। अब उसके बाद देखें, मांगने और सवाल करने की मजम्मत में भी 2-3 अहादीस हमारे सामने आ रही हैं। बहुत सी अहादीस हैं जिनमें से हम सिर्फ 2 का ज़ैल में जिक्र करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है, वो आग के अंगारे मांगता है, उसे अख्तियार है चाहे उनकी मकदार ज्यादा जमा कर ले या कम। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। अब देखिए, जो आदमी अपना माल बढ़ा रहा है किस तरीके से, लोगों से मांग कर माल बढ़ा रहा है। बाज मसाजिद के बारे में तफसीलात आई, बड़ा अफसोस हुआ, मस्जिद के लिए जमीन खरीद रहे हैं, मस्जिद के लिए जो ना उसको एक्सटेंड कर रहे हैं बोलकर तौसीए लेकर जो लोग चंदा करके, और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट वाले बहुत आगे हैं इस मामले में, क्योंकि हैदराबाद वाले लोग डिस्ट्रिक्ट को जाकर देखते नहीं, शहर वाले लोग अब वहाँ क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा मालूम होता नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट वाले आके बताते हम गरीब है, फला है, ये है, वो है, जज्बात में आके लोग दे देते हैं, ताउन कर देते हैं। वहाँ हालत ये कि एक सब लोग नमाज पढ़ने वाले नहीं है, 400 गज जमीन खरीदने के लिए 2 साल से चंदा चल रहा है, लाखों का चंदा हड़पा जा रहा है, तो चंदा वसूल करने वालों को कमीशन दे दिया जा रहा है और बैठकर ये सदर साहब जो ना खाते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ये डर नहीं है लोगों को, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के घर के नाम पर, अल्लाह के दीन के नाम पर खा रहे हैं बगैर किसी काम के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वो आग का अंगारा भर रहा है, आग जमा कर रहा है, मर्जी उसकी जितनी जमा करना है जमा कर ले, आग उसकी अपनी मर्जी है। एक और रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अगर तुम में से कोई शख्स सुबह चला जाए और जंगल से अपनी पीठ पर लकड़ियां काट कर ले आए और फिर उन्हें फरोख्त करके बेच कर सदका व खैरात करे और लोगों से बेनियाज हो जाए, तो ये इस बात से बेहतर है कि वो किसी शख्स से सवाल करे, खा उसे दे या ना दे। लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर ये है कि मेहनत मजदूरी करो। लकड़ी काटने की एक मिसाल दी गई, अब ये जरूरी नहीं, आज गैस सिलेंडर का दौर है, आज हर घर में गैस सिलेंडर है, 2 घंटे में गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। आज कोई आदमी कहेगा कि अल्लाह के नबी की हदीस पर मैं अमल करते हुए जाके जंगल से लकड़ी काट के बेचूंगा, हाँ तो शायद ही फंक्शन हॉल में बिके या किसी घर में दावत हो तो बिकेगी, वरना तो गैस पर ही तकरीबन पकवान होता है। तो कोई ये हदीस पर अमल अपनी जगह है, लेकिन ये हदीस अमल करने की मुराद यहाँ पर क्या है, मेहनत करना है। मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ और तुम सदका देने वाले बनो। रासूल ने दूसरी जगह क्या कहा, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। तो देने के लिए
अब लेने की अगर बात की जाए तो आप लेने जाएंगे तो कोई आदमी देगा, कोई आदमी झिड़की देगा, जा भाई जा, काम का लगा है, तुम लोग धंधा बना लिए, तुम लोग कारोबार बना लिए। बसा औकात मोहताज भी ऐसी बातें सुन लेता है, जरूरतमंद भी जो है ना वो जरूरतमंद होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से वो जरूरतमंद को कभी गाली खा लेना पड़ता है, कभी झिड़की खा लेना पड़ता है। हालांकि इस्लाम ने ऐसा करने से मना किया है। इस्लाम ने मांगने वाले को झिड़की देने से मना, वो घोड़े पर बैठ कर आए, वो कार में आके बैठ के मांगे, वो मांग रहा है, वो उसका हक है, वो मांग रहा है, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है वो अल्लाह को मालूम है। आप देना चाहो तो दो, ना देना चाहते हो तो झिड़की मत दो। वाम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाले को झिड़की मत दो। आप नहीं दे सकते, इज्जत से उसको बोलो भाई आगे बढ़िए, आप आओ जाके जनाब मेहनत करिए, नहीं कर सकते आपकी मर्जी, मैं नहीं दे सकता, आप आगे जाइए, हम किसी और को देते हैं, हमारे कुछ लिस्ट बनी हुई है, हम हर महीना किसी का ताउन करते हैं, किसी का यतीम की कफालत करते हैं, किसी बेवा की कफालत करते हैं, हाँ किसी का घर चलाते हैं, कोई ऐसे हमारी जिम्मेदारी, हमको चाहिए किस तरह हम अपनी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लें किसी के घर की। हम पता है कि लॉकडाउन में बहुत से लोग बेवा हो गए हैं, बहुत से मर्द हजरात का इंतकाल हो गया, घरों में बीवियां बेवा है, बच्चे जो ना यतीम होकर बैठे हुए हैं। अब वो अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे, अब वो घरों में काम करने जाना पड़ रहा है, कुछ जो है ना मजबूरी में जो ना कोई और काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। अच्छे लोग थे लेकिन हालात ने इस जगह पर ला पहुंचा दिया। ऐसे लोगों के घरों की जिम्मेदारियां उठाना, ऐसे लोगों के घरों के अखराजात को उठाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था बेवाओं के ताल्लुक से, आरामिल, बेवाओं की कफालत करना। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई मांगने वाला आता है तो मांगने वालों को अच्छे तरीके से देना है दें, ना देना है उसको झिड़की ना दें, गाली ना दें, धक्का ना दें, उसको मोहब्बत से और रुखसत कर दें। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन अगर किसी शख्स को कोई माल सवाल किए बगैर मिले तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। आदमी जरूरतमंद है, हाजतमंद है। अब ये तीसरा मसला है, अगर कोई हाजतमंद है, वो मांग रहा नहीं, मांगे बगैर उसकी हाजत का ख्याल करके लोग उसे ला कर दे रहे हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं होना, तो ये भी गलत है। जरूरत है तो ले लेना चाहिए। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ माल इनायत फरमाया करते थे, मैं आपसे कहता था कि उसे किसी ऐसे शख्स को दे दीजिए जो मुझसे ज्यादा हाजतमंद हो, जो मुझसे ज्यादा हाजतमंद हो। आप फरमाते उसे ले लो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा माल मिले जिसके लेने के तुम दर पे ना हो और ना उसका सवाल कर रहे हो तो उसे ले लो, और जो माल तुम्हें खुद ना मिल रहा हो उसके पीछे ना पड़ो। तो ये मांगे बगैर अगर आ रहा है और जरूरत है तो ले लेना चाहिए, जरूरत नहीं है तो इख्तियार है कि भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा गरीबों को दे। ये हिदायत सवाल करने वाले के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देने वाले के लिए हिदायत है कि मांगने वाले पर हुस्न ज़न से काम लिया जाए। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल करने वाले का हक है खा वो घोड़े पर सवार होकर आए। घोड़ा आज के जमाने में सबसे कीमती सवारी है। सवार होकर आए, उसकी पॉकेट चोरी हो गई, फोन चोरी हो गया, गिर गया, या उसका कुछ नुकसान हो गया, काफिला वो साथ में जा रहा था बिछड़ गया, अकेला हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं है। बसा औकात ऐसा होता है जैसे अभी आजकल तो यूपीआई का जो ना दौर है, कहीं भी गए गूगल पे फोन पे स्कैन करे। बसा औकात नेट नहीं आता, किसी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, वो परेशान है, उसको जरूरत है, लेना है। अब ऐसी सूरत में वो अगर किसी से भाई आप थोड़ा दो, मैं बाद में वापस आपको देता हूँ, ठीक है, अलग बात है। तो ऐसी सूरत हो सकती है, अल्लाह ना करे ऐसी कभी नौबत आए। तो मेरे कैफ मांगने वाले का अपना हक है, वो मांग सकता है, लेकिन मांगने से पहले वो मांगने की मजम्मत भी जान ले कि मांगने की वजह से वो अगर जरूरतमंद ना रहकर मांग रहा है तो अपने लिए आग जमा कर रहा है। कल क़यामत के दिन उसके चेहरे पर गोश्त बाकी नहीं रहेगा, उसका सारा गोश्त चेहरे का निकल जाएगा, सिर्फ हड्डियां ही बाकी रहेंगी। सवाल एक है कि जी सुन रहे हैं उसको अपन अस्कार भी पढ़ ले सकते। क्या क्या कुरान सुन रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही कैसे है, बोलिए? कुरान सुन रहे हैं, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही, क्या उस दौरान अपन जिक्र भी कर ले हाँ, सकते? अपने दो अपन काम एक साथ नहीं हो सकता, अस्कार पढ़ नहीं हो सकते? नहीं हो सकता, दो काम एक साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो अस्कार करिए तो कुरान सुनिए, या तो कुरान बंद कर दीजिए, अस्कार करिए, अच्छा क्योंकि अच्छा, नहीं सुनना भी अक्सर पूरा जैसा नहीं हो सकता। हम अस्कार पढ़ने में रह जाएंगे तो सुनेंगे कहाँ, फिर कुरान खाली चलता फिर। हाँ हाँ,
نہیں اکثر مسجد میں جی بیان چلتا ہے، نماز کے بعد اذکار پڑھ لیتے رہتے، تو وہ صحیح ہے نہیں؟ بہتر ہے تھوڑی دیر رک جائیں، کیونکہ دو کام ایک ساتھ پورے انہماک کے ساتھ، پورے خوشو خضوع کے ساتھ ناممکن ہے، پھر کہیں نہ کہیں بھول ہو جائے گی۔ آپ درس غور سے سننا چاہیں گے تو اذکار یاد نہیں آئے گا، میں کتنے بار پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ ہاں ہاں، جزاک اللہ خیر شیخ۔ کفار مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔